कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी के बारे में, प्लास्टिसिटी के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड के बारे में, हमने पढ़ा था स्ट्रेस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन के बारे में। क्या होता है स्ट्रेन? टोटल 3 तरह की स्ट्रेस पढ़ी हमने, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस, जिसको बोला जाता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। आज हम पढ़ेंगे 3 तरह की स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेन? स्ट्रेस का कंसेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो क्या होता है स्ट्रेन भाई? स्ट्रेन is the ratio of change in configuration of the body to the original configuration. Change in configuration of the body to the original configuration. Ratio of change in configuration of the body to the original configuration is called strain. Change in configuration, मान ले लेंथ में जो चेंज हुआ, so change in length, that is delta L upon original length, that is length. Delta L upon L, that is nothing but pure number. Yes or no? एक प्योर नंबर मिलेगा जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। So strain is nothing but it is pure number. ये एक नंबर मिलेगा और कुछ भी नहीं। It has neither units nor dimensions. It has neither units nor dimensions. स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन होता नहीं है। सो स्ट्रेन दैट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या ठीक? अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। When any solid object is stretched, here I am taking cylindrical wire. When this cylindrical wire of length L is stretched or compressed, then there will be some change in the length of the wire. Yes or no? कुछ लेंथ में चेंज आएगा। दैट चेंज इज नथिंग बट डेल्टा एल। पहले लेंथ क्या थी? एल, फिर बढ़ के कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा एल। सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन is nothing but change in configuration of the body. Here change in length of the cylindrical wire, that is delta L, to the original configuration, to the original length will give us longitudinal strain. Ratio of change in length, ratio of change in length of the body to the original length is called longitudinal strain. क्या बनेगा यूनिट? नो यूनिट, यूनिट लेस क्वांटिटी। सेम वे सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेन दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या ले लेता हूं? वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन कब मिले? व्हेन हाइड्रोलिक pressure is applied
on a body, on a solid body, there is change in the volume of solid body. When hydraulic pressure is applied on a solid body, there is change in the volume of solid body. When any solid object is kept in fluid, then on that this fluid will apply force like this. Due to this, its volume decreases by amount. Let me take this amount to be delta V. कितना छोटा हुआ? डेल्टा V. Suppose its volume changes by amount delta V. Then volume strain is nothing but change in configuration. What is the change in configuration? Delta V upon original volume, that is V. So volume strain is nothing but delta V by V. This is the formula of volume strain. Third type of strain, that is shearing strain. कैसी स्ट्रेन? shearing strain. तो shearing strain की बात करें तो कब मिलेगी shearing strain? Suppose we have one cylinder of length L, and if tangential forces are applied on the cross section of the cylinder in opposite direction, then one of its face will displaced by small angle theta from the vertical. Suppose it is displaced by length delta x and original length of the cylinder, that is L, right? Then shearing strain is nothing but change in configuration. पहले इसे वर्टिकली रखा गया था, वर्टिकल के साथ कोई एंगल नहीं था, क्या था? जीरो। पर जब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किए गए दोनों फेसिस पे, तो एक फेस इस तरफ गया, एक फेस इस तरफ, तो ये जो सिलेंडर है वो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, मतलब उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एक्स। चेंज इन कन्फिग्रेशन, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, दैट इज डेल्टा एक्स बाय एल। सिर्फ इसी में याद रखना है। शेयरिंग स्ट्रेन क्या बनेगा? डेल्टा एक्स बाय एल। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि इनिशियली तो कोई चेंज था ही नहीं, ओरिजिनल क्या था? जीरो, तो डेल्टा एक्स अपॉन जीरो, शेयरिंग स्ट्रेन इनफाइनाइट। shearing strain, that is displacement delta x upon length of the object, that is L. तो shearing strain मिलेगी delta x by L. Now if we observe this triangle, then tan theta is equal to opposite upon adjacent, yes or no? So delta x by L is nothing but tan theta. Delta x by L is nothing but tan theta. और जनरली ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी स्मॉल। इसके लिए एनसीईआरटी में एक बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप लोग कोई बुक लोगे और उसके ऊपर कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, तो ऊपर वाला फेस जो है वो इस तरफ मूव करेगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर बुक रखी हुई है टेबल पे और ऊपर की तरफ, ऊपर के फेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, तो उसकी वजह से बुक में, मान लो ये बुक है क्या, ठीक, और इसे रखी गई है टेबल पे। जैसे ही आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे
तो बुक का ऊपर वाला हिस्सा कुछ डिस्प्लेस होगा, यस और नो? एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन. फोर्स पर यूनिट एरिया विल गिव यू शियरिंग स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया देगा स्ट्रेस, और चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन विल गिव यू स्ट्रेन. तो शियरिंग स्ट्रेन बनेगी डेल्टा एक्स बाय एल दैट इज टेन थीटा. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा बहुत छोटा होता है. द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर दिस एंगल विल बी वेरी स्मॉल. एंड फॉर स्मॉल एंगल्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा. छोटे एंगल के लिए टेन थीटा क्या बनता है? थीटा. टेन जीरो की वैल्यू क्या मिलती है? जीरो. फॉर स्मॉल एंगल्स ऑलवेज रिमेंबर, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा. जब एंगल बहुत ही छोटे होंगे तो टेन थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं? थीटा. साइन थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं? थीटा. व्हेन एंगल्स आर वेरी स्मॉल. तो शियरिंग स्ट्रेन के फॉर्मूला मेरे डेल्टा एक्स बाय एल और थीटा. एंगल हमेशा छोटा रहेगा तो टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? थीटा. क्या ठीक समझ में आया? तो ये हो गई तीन तरह की स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन. लिखना है? जल्दी से लिख लो. स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है? एकदम परफेक्ट. चलो अब पढ़ते हैं हुक्स लॉ. क्या पढ़ते हैं? हुक्स लॉ. Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Within elastic limit, for most of the materials, stress is directly proportional to strain. मतलब स्ट्रेस ज़्यादा होगी तो स्ट्रेन भी ज़्यादा मिलेगी, चेंज जो होगा वो भी ज़्यादा होगा. स्ट्रेस कम तो चेंज भी कम. Whenever we remove proportionality sign, we have to multiply some constant. So stress is equal to constant K into strain. Constant K into strain, where K is proportionality constant. K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसे क्या बोला जाता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. दिस इज हुक्स लॉ. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस घटे तो स्ट्रेन घटे, स्ट्रेस बढ़े तो स्ट्रेन बढ़े. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में जाएं, जैसे हमें तीन तरह की स्ट्रेस मिली, तीन तरह की स्ट्रेन मिली, वैसे ही हमें तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेंगे. फर्स्ट, that is Young's modulus of elasticity. क्या मिलेगा? Young's modulus of elasticity. Second, that is bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity. And third, that is shear modulus, or it is called modulus of rigidity. अब आप बोलोगे सर ये सब क्या है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉड्यूलस, ये सब है क्या? तो जैसे आप लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिटेल में. चिंता मत करो.
पहले स्टार्ट करते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से। किससे? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको बोला जाता है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young's modulus of elasticity. The ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young's modulus of elasticity. ध्यान से देख, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विल गिव यू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिनोटेड बाय वाई। किससे डिनोट किया जाता है? वाई। सो यंग्स मॉड्यूलस दैट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल stress to the longitudinal strain. मुझे बता लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बना? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बना? F/A। क्या बना? F/A। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बना था? डेल्टा L/L। यस सर। When one of the end of cylindrical rod or wire is fixed and if force is applied on the other end of the cylindrical wire, then what will happen? This wire will get stretched and its length will increase like this. Yes or no? When we apply some force from outside, restoring force will be developed in the material, that will be F. Yes or no? Restoring force per unit area, restoring force per unit cross sectional area, that is F/A, upon strain, that is change in configuration, that is delta L, upon original length, that is L, delta L/L. Therefore Young's modulus Y is equal to F/A into denominator numerator L upon delta L. So formula of Young's modulus, that is FL upon A delta L. Now tell me what should be the unit of Young's modulus of elasticity? क्या बने इसका यूनिट? SI यूनिट ऑफ Young's modulus क्या बनेगा? एक एक का यूनिट मत निकाल। स्ट्रेस का यूनिट क्या बनता है? न्यूटन मीटर रेज़ टू -2, न्यूटन मीटर रेज़ टू -2। स्ट्रेन का यूनिट क्या बनता है? इट इज़ यूनिट लेस क्वांटिटी, तो न्यूटन मीटर रेज़ टू -2 और पास्कल, दैट इज़ द यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, फोर्स का क्या बनेगा? MLT -2, A का बनेगा L2, ऊपर जाए ML-1T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले स्ट्रेस का कंसेप्ट समझा, फिर स्ट्रेन का, अब समझ रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस क्लियर है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन, ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसी तरह से, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ज़्यादातर न्यूमेरिकल इन्हीं पे बेस्ड है। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है तो समझ लो चैप्टर नंबर 9 आप लोगों का क्लियर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स।
तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही कम फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, पर अच्छे से ध्यान दो। चलो, तो ये हो गया हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब लेते हैं शियर मॉड्यूलस, पर उससे पहले आप लोग इतना लिख लो। आइए अब देखते हैं शियर मॉड्यूलस। अब आप लोगों को पता हो चल गया होगा कि शियर मॉड्यूलस क्या बनना चाहिए। द रेशियो ऑफ shearing stress to the corresponding shearing strain is called shear modulus and is represented by G। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? G से। यंग्स मॉड्यूलस के लिए हमने Y लिया था, शियर मॉड्यूलस के लिए क्या ले रहे हैं? G। द रेशियो ऑफ shearing stress to this corresponding shearing strain is called shear modulus and is represented by G। It is also called modulus of rigidity। तो क्वेश्चन में अगर शियर मॉड्यूलस यूज़ कर रहे हैं तो क्या लेना है? जी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दे रहे हैं, मतलब क्या दिया है? शियर मॉड्यूलस, जी। फॉर्मूला क्या बनेगा? शियर मॉड्यूलस दैट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ shearing stress to the shearing strain। yes or no? चलो, shearing stress क्या मिली थी? फोर्स पर यूनिट एरिया। shearing strain अभी अभी पढ़ा, जो चेंज आ रहा था कितना चेंज आ रहा था? डेल्टा एक्स बाय एल। डिस्प्लेसमेंट था डेल्टा एक्स, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सिलेंडर दैट इज एल, सो दैट इज नथिंग बट shearing strain एफ बाय ए अपॉन डेल्टा एक्स बाय एल। सो दिस कैन बी रिटन एज एफ बाय ए इंटू एल बाय डेल्टा एक्स। ये बन गया शियर मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस का फॉर्मूला। क्या ठीक? एक और फॉर्मूला बनाया था, दिस डेल्टा एक्स बाय एल इज नथिंग बट टेन थीटा, बट फॉर स्मॉल एंगल्स टेन थीटा इज नथिंग बट थीटा। सो अनदर फॉर्मूला ऑफ जी दैट इज एफ बाय ए अपॉन shearing strain दैट इज थीटा, देयरफॉर जी इज इक्वल टू एफ बाय ए थीटा। ये इज अनदर फॉर्मूला ऑफ शियर मॉड्यूलस। तो हमें क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करने हैं फॉर्मूला। अगर डेल्टा एक्स और एल दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, अगर थीटा दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। क्या ठीक? मुझे बता ऐसा यूनिट क्या बने? ऐसा यूनिट ऑफ शियर मॉड्यूलस क्या बनेगा? स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा, तो क्या बनेगा? न्यूटन मीटर रेज़ टू -2 और पास्कल। क्या ठीक? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? ml-1 t-2। तो ये हो गई शियर मॉड्यूलस के बाद। अब एक बचा बल्क मॉड्यूलस। अब आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा? यंग्स मॉड्यूलस। शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का रेशियो ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है? शियर मॉड्यूलस। तो अब हमें क्या लेना चाहिए? वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो, तो हमें क्या मिलेगा? बल्क मॉड्यूलस। देख लेते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, पर उससे पहले इतना लिख लो। आइए अब देखते हैं बल्क मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस हो गया, शियर मॉड्यूलस हो गया, अब बल्क मॉड्यूलस।
bulk modulus. The ratio of hydraulic stress to the corresponding hydraulic strain is called bulk modulus. क्या बोला जाता है? bulk modulus. The ratio of hydraulic stress to the corresponding hydraulic strain is called bulk modulus and is represented by B. किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल B. So bulk modulus B is nothing but hydraulic stress upon hydraulic strain. हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या बना था? दैट इज नथिंग बट प्रेशर. जब फ्लूइड में रखा गया था तो इसके ऊपर क्या लग रहा था? प्रेशर. सो P अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन दैट इज डेल्टा V बाय V. सो बल्क मॉड्यूलस इज नथिंग बट माइनस P अपॉन डेल्टा V बाय V और डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V, बट नेगेटिव साइन शुड बी देयर. अब ये नेगेटिव साइन क्यों लिखी हमने? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एज प्रेशर इंक्रीजेस volume decreases. Negative sign indicates that as pressure increases, volume decreases. It means if P is positive, then delta V is negative. Yes sir. बिकॉज डेल्टा वी दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर लगने की वजह से ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम कम होगा. तो ये जो डेल्टा वी है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम की कंपैरिजन में कम है, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू. ए पी इज पॉजिटिव देन डेल्टा वी इज नेगेटिव. थस फॉर the system in equilibrium, the value of bulk modulus is positive. मतलब बल्क मॉड्यूलस क्या मिलता है? पॉजिटिव. अगर बल्क मॉड्यूलस पॉजिटिव लाना है, अगर डेल्टा वी नेगेटिव हुआ तो बल्क मॉड्यूलस क्या मिलेगा? नेगेटिव. तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रखनी होगी बिकॉज बल्क मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. प्रेशर पॉजिटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, बल्क मॉड्यूलस दैट इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करना होगा. दस फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज पॉजिटिव. इसीलिए बल्क मॉड्यूलस के फॉर्मूला में हमेशा ध्यान रखें, बल्क मॉड्यूलस B इज इक्वल टू माइनस P अपॉन डेल्टा V बाय V. क्या ठीक? अब एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी. क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ? कंप्रेसिबिलिटी. किसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी? द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड compressibility. Okay.
द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी K. So K is nothing but 1/B. Reciprocal of bulk modulus is called compressibility. तो इस तरह से हमें 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेंगे, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस, और तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। क्या ये सारी चीज़ें क्लियर है? एकदम परफेक्ट। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो नेक्स्ट टाइम हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेस का कंसेप्ट, स्ट्रेन का कंसेप्ट और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें क्लियर हैं तो आगे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखने के लिए आप लोगों को समय मिलेगा, पर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।